નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप आपने लास्ट वीडियो में अ स्नेक चार्मर स्टोरी हमने जहाँ तक की थी वहाँ तक आपने अच्छी तरह से समझ ली है. स्टिल हैव अ क्विक लुक ऑन what we have learnt. Now the boy Aryanath was there, right? And what he has got some special art, right? I can do something special. और वो special क्या क्या था? He can play a bean and make snakes dance by playing a bean, right? Then he tells that this art he has learned from his family, right? And they are known as a कलबेलियास, राइट. अब आगे उसने बताया माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी ही इज़ ऑल्सो अ फेमस अमॉन्ग्स अवर people. And what he used to do, he used to catch many poisonous snakes. Now what Roshan Nath ji, his grandfather, he tells the stories, right? Many stories. And he has got also many stories in his past. Now one of the story is discussed over here. Let's see what is the story. We have learned this in the last session, still we are going to remember. Dadaji remembers the story and says that from the time of his grandfather and his great grandfather, they were known as saperas, that is snake charmer. And snake is the important part of their life. They used to move from one village to other village by carrying a snake. And in which basket they used to carry the snake? They used to carry the snake in bamboo basket. Now, wherever they stops in the village, the crowds gathers and they used to take out the snakes from the baskets and do the shows. Right. Now, people stay rather the show is finished because they know something, some types, like they used to keep some types of medicines, and these people knows that they have got medicines of many types in their tiny box, right? Tin box, and which is tiny. Now, these medicines are made from plants, right? And from where do they collect these plants? From forest. These thing the grandfather has learned from their grandfather, and the grandfather felt very nice that helping the peoples by the medicines, rather the hospitals and doctors were not nearer, right? In return, what the people used to do? In return, the people used to give some money or food grains. In this way, they manage their life. Now, sometimes the grandfather, right, they were called when the snake were bitten, right? And what they used to do? From the mark, they can identify, from the mark of the bite, they can identify that which snake had bitten the person. Now, also, according to that, the Dadaji gives the medicine for that. But always it is not like that. Some snakes are poisonous, and sometimes it happens that the person death on the death because of the snake bite on the spot. But most of the snakes are not poisonous, right? Sometimes the farmers, they also used to shout snake, snake, and the Dadaji goes there and catch the snake, right? So catching the snake is something they learn from their childhood. Now those were very good days, Dadaji remembers. And we what says that this is one sort of entertainment for the people. Nowadays, what is the entertainment for the people? Rather TV, right? But it is not like that in the olden days. In the olden days, these are the kinds of entertainment what the people used to enjoy. Now, when I grew older, my father taught me how to. Now, this is the thing when Dadaji grows up, and how to remove the poisonous teeth, यानी कि fangs of the snakes. And he also taught, यानी कि उनके पापा जी ने उनको क्या सिखाया था? How to close tube of poison in the snake's mouth. राइट. सो ये अब तक दादाजी ये स्टोरी कहते हैं.
नाउ ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने थे, राइट? आई होप एवरीबडी हैज़ डन विद दिस क्वेश्चन आंसर्स. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आंसर है. स्टिल एट द एंड ऑफ द लेसन आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ लेट्स सी फर्दर. व्हाट कैन वी डू नाउ? यही स्टोरी है आगे आर्यनाथ की. लेट्स सी. आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड, राइट? अब आर्यनाथ को बताते हैं कि तुम्हारे पापा जी जो थे, राइट, क्योंकि ये तो ग्रैंडफादर अभी स्टोरी बता रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आर्यनाथ के ग्रैंडफादर है, तो आर्यनाथ के पापा के बारे में बोल रहे हैं कि योर फादर यूज टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज यंग चाइल्ड, यानी कि वो जब छोटे थे तब से ही वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे. ही लर्नड टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. ऑब्वियसली आप अगर हर रोज़ जो काम देखते हैं वो अपने आप से सीख जाते हैं, आपको उसको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? सो ही लर्नड टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, यानी कि कुछ भी सिखाने से, ये बीन सिखाया नहीं था उनको पापा ने, दादाजी ने, फिर भी उनके पापा सीख गए क्योंकि वो हर रोज़ उनके साथ ट्रैवल करते थे. These days it is difficult, but nowadays it is very difficult because now the government has made a law. क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी लॉ बनाया है, इसीलिए इसी लॉ के हिसाब से यू कैन नॉट सी द शोज ऑफ द स्नेक्स, राइट? अब क्या लॉ है देखते हैं. दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम. Snake is one sort of wild animal only. So the law is that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skin at high prices. You know, हमने सीखा था कि ये जो एनिमल्स की स्किन है वो उसकी कीमत होती है अगर आप बेचने जाओ तो. हम नहीं बेचते हैं, बट द पीपल हु वेर included in this, they used to sell the skins of the animals and they get a very high price for that, right? So the government banned it, इसीलिए गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है, right? So they made a law against this, इसीलिए उन्होंने ये लॉ किया कि भाई एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स, लायंस, राइट, they are not allowed to kill and they are not allowed to catch. Now with this law, how will we earn our livelihood? Right? अब उनका गुजारा तो कैसे चलता था? स्नेक के हिसाब से, स्नेक शो करके, राइट? बिकॉज दे वर नोन एज सपेरास, राइट? सो अभी अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, राइट, लागू हुआ, तो ऑब्वियसली जो स्नेक उनका मेन पार्ट था लाइफ का वही नहीं रहा, तो उनका गुजारा कैसे हो सकता है? So we people have never killed snakes and sold their skin, but still सपेराज ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, कभी भी स्नेक को भी नहीं मारा था और उनकी स्किन भी नहीं सोल्ड की थी, क्योंकि स्नेक था वो तो उनका लाइफ का मेन पार्ट था, बिकॉज दे यूज टू डू अ शोज, राइट? पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस. वो ऐसा बताते थे कि बैड कंडीशन में रखते हैं. इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स. अब दादाजी बताते हैं कि अगर हमें करना ही होता, राइट, यही काम हमें स्किन बेच के पैसा कमाना होता, तो ये तो हम बहुत ही पहले कर दिया होता, राइट? तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर दैट बिफोर दोज डेज, बट वी वुड नेवर डू दैट. बट सपेराज जो होते हैं उन्होंने कभी भी ये काम नहीं किया था जो स्किन को बेचते हैं वो. स्नेक्स आर अवर ट्रेजर, यानी कि खजाना है उनका, ट्रेजर, राइट, दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यानी कि उनके दादाजी ने उनको, दादाजी ने बोला ना कि उनके दादाजी के टाइम से उन्होंने ये सीखा था. सो दिस आर्ट इज बीइंग coming from generation to generation, passing from generation to next generation. We even gift snakes to our daughters. वो क्या करते थे, उनकी बेटियां थी, daughters, उनको वो snakes गिफ्ट करते थे when they got
मैरिड, राइट। उनकी जब शादी होती है तब हम लोग गिफ्ट करते हैं ना, वैसे ही ये सपेरास क्या करते थे, ये गिफ्ट करते थे उनकी डॉटर को स्नेक्स। इन अवर कल्बेलिया, यानी कि जो कल्बेलिया डांस होता है, देखा आपने ये, राइट। वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। अभी आप देखते हैं ना, जब भी नागिन डांस होता है, वो म्यूजिक आता है ना, टू डू 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 डू, तो सब लोग कैसे वो एक बीन पे हाथ, आपको भी पता होगा, आप भी वो डांस करते होगे। सो दैट इज द कल्बेलिया मूवमेंट, राइट। वो जो उनकी मूवमेंट होती है स्नेक की, वो मूवमेंट हम भी दोहराते हैं, राइट। तो वो ये उनके डांस में इंक्लूड करते थे। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब उन दादाजी उनको सजेस्ट करते हैं, उनको सीख देते हैं कि अभी के टाइम में ये लॉ के हिसाब से यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स, राइट। सो यू हैव टू मेक योर लाइफ डिफरेंट, हमसे अलग तरह की आपको करनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, ऐसे दादाजी आर्यनाथ को बताते हैं। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। अभी उनको गिफ्ट क्या है, बीन बजाने की, राइट, आर्यनाथ को। तो यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। अभी आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो तरह तरह के बजाते हैं, तो यही आर्ट वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी कला एंटरटेन पीपल को पार्टीज में एंटरटेन करके कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ डिफरेंट अर्निंग विद देयर सेम आर्ट ऑफ प्लेइंग बीन, यानी कि उनकी बीन की जो आर्ट है बजाने की, उसी से वो अलग तरह से गुजरान कर सकते हैं, यानी कि पार्टीज में वो पीपल को एंटरटेन कर सकते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। बट वो क्या बताते हैं कि ये नॉलेज जो आपने सीखा है बीन बजाने का, वो वेस्ट मत कर देना, ऐसे ही जाने मत देना, राइट। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रंस हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। उनको आप सिखाना, राइट, ये आर्ट शेयर करना, राइट। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स। उनको बताना कि आप स्नेक से डरो मत, राइट, डोंट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स, बल्कि उनको सिखाना कि कैसे हम पॉइजनस स्नेक्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स को बताना कि जो स्नेक्स हैं उनके फ्रेंड्स ही है, राइट। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स विल ईट द क्रॉप्स। उनको बताना कि उनकी फील्ड कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं रैट्स को ईट करके, राइट। कैसे, अदरवाइज ये रैट पूरा क्रॉप खा जाएगा ना, तो फार्मर्स के फ्रेंड हुए कि नहीं अगर रैट को खा जाते हैं तो, राइट। तो ऐसे आप उनको बताना, ऐसे दादाजी बोलते हैं। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रंस। अब दादाजी बताते हैं कि ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताई, राइट, वैसे ही आप अपनी स्टोरी और मेरी स्टोरी दोनों आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस पिक्चर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी। देखो ये दिखाई देता है ये, सो दैट इज बीन। बीन, तुम्बा, खंजरी एंड ढोल, राइट। So except dhol, all the other three instruments are made from dried ground. Look here, right? Now you can able to see Kalbelia dance. Look at this. Okay, I hope this you have understand. Now go with this portion. Have you ever seen animals being used for entertainment of people? अब ये हमने स्नेक तो देखा, राइट, पर आपने देखा है कभी और एनिमल्स जो पीपल को एंटरटेन करते हैं? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, सर्कस में, रोड पे और इन पार्क। यस, आई हैव सीन इन सर्कस ओनली एलिफेंट, मंकी, लायन, राइट। सो दीज थिंग आई हैव सीन इन सर्कस ऑन द रोड इफ यू हैव सीन देन, और इन द पार्क। सो आपको ये आंसर देना है। अब कहाँ पे देखा था, व्हेन, एंड व्हेन यानी कि कब देखा था, एंड वेयर डिड यू सी दिस।
तो मैंने जब सर्कस में विजिट किया था, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ अभी, when I have visited to the circus, I have seen a monkey playing or a monkey entertaining the people, right? So this is my answer. You have to write your answer according to your जब भी आपने देखा था तब उसका लिखना है. Now which animal show did you see? Then my answer is I have seen monkey show, right? And where I have seen in the circus. How did people behave with the animals in the show? How did people behave? They get that excited, right? Was anyone teasing the animals? How? Yes, in the zoo the peoples used to tease the animals. आप भी करते हो ना, मंकी जब ऐसे आता है हुप 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 वैसे. So that is one sort of teasing. अगर कोई आपका कॉपी करता है द सेम एज इट इज़, अगर आप एनिमल्स की कॉपी करते हैं देन इट इज़ वेरी बैड. यू शुडंट कॉपी और यू शुडंट टीज द एनिमल्स, राइट? सो आपको यहाँ पे आंसर करना है वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल एंड हाउ, कैसे, आवाज़ करके, कुछ भी लकड़ी लगा के, कुछ भी करके. नाउ द लास्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो? Now this you have to list it down in your notebook. These all questions you have to write it down in your notebook. That the last one is what kind of questions, आपको कैसे questions होते हैं माइंड में जब आप एनिमल शो देखते हो, राइट? सो आई होप टिल हियर एवरीबडी हैज़ अंडरस्टैंड. इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज. अब आपको इमेजिन करना है कि ये जो एनिमल है उसके हिसाब से अगर आपको इमेजिन करना है कि मैं ये हूँ, थिंक हाउ यू वुड फील. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आई एम अफ्रेड. अब आपको ये इमेजिन करना है और उसके बाद आपको लिखना है कि अगर इसकी जगह आप होते तो आपको कैसा फील होता. अब ये फीलिंग आपको कैसी आती है वो तो मुझे नहीं पता चलेगी, राइट? सो दिस यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. But don't worry students, at the end of the time I will provide you the answer key so that according to the answer key you can come to know you have to write the sentence over here. I am afraid when people comes near to me. This is just an answer I am giving you. You can write it down other answers also. I wish I, तो आपकी क्या wish थी वो लिखना है. I am sad when, आप कब sad होते हो ये आपको इमेजिन करके लिखना है. दैट एनिमल इन अ केज, राइट? इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं क्या बनना चाहता हूँ या मैं क्या करूँगा. आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मुझे तब पसंद नहीं है. कब? तो आपको इमेजिन करना है कि ये आप हो एंड देन यू हैव टू राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू दिस, राइट? इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द आंसर की and then we will start our next portion. I hope watch the videos for 2-3 times for more understanding, right? And then just come to know what is there up to here. Thank you for joining us.